Hello students, welcome to Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Myself Pushpendu Kumar, Assistant Professor in Civil Department. Students, our subject is RRS, which is in BTech 5th semester. Students, in last lecture we discussed about the topic conniting and shotcrete. How to use conniting and shotcrete. Today we will discuss on the topic external bonded plates, processes, limitation, etc. Students, let's start structural strengthening. Structural strengthening, restoring and adding capacity is an integral part of today's concrete repair industry. जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग और रिस्टोरिंग है, ठीक है, इसके अलावा एडिंग कैपेसिटी है, ये आज के समय में कंक्रीट रिपेयर इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग में बी रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग लोड कैपेसिटी ऑफ बीम. जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग है किस लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी? जो बीम है, कॉलम है, वॉल है, स्लैब है, इनकी लोड कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. Seismic retrofitting supporting additional line or dead loads not included in original design to relieve stresses generated by design or construction errors or to restore original load capacity to damaged structure elements. Next, advanced composite material. Fiber reinforced polymer FRP. लास्ट हमने इसके बारे में पढ़ लिया था. FRP कंपोजिट सिस्टम आर यूज टू स्ट्रेंथन ए वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर फॉर फ्लेक्चर, शियर, एक्सियल लोड्स एंड सिस्मिक अपग्रेडिंग. बोथ ग्लास FRP, GFRP एंड क्रोब FRP, CFRP आर यूज्ड इन these applications, with CFRP being used for most structural application. Fiber reinforced polymer composites have been used for decades in aerospace and manufacturing applications where low weight, high tensile strength and non-corrosive structural properties are required. In civil engineering applications, CFRP has proven to be extremely effective as externally bonded reinforcement. CFRP materials are successful because they exhibit low creep and compared with steel are thinner, lighter and have 10 times the tensile. एडवांटेज की स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें तो क्विक कंप्लीशन टाइम, इसका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो क्या होता है? तेज़ी से होता है, ठीक है. कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन कंपेयर्ड विद द रिमूव एंड रिप्लेस ऑप्शन. इसकी जो कॉस्ट है वो भी इफेक्टिव होती है किसकी तुलना में? रिमूव एंड रिप्लेस ऑप्शन की तुलना में. नो एडिशनल डेड लोड एडेड टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में कोई एक्स्ट्रा डेड लोड भी एडेड नहीं होता. मिनिमल एक्सेस टू वर्क एरिया रिक्वायर्ड. जो वर्क एरिया होता है वो कम से कम रिक्वायर होता है. नो हैवी इक्विपमेंट इज इन्वॉल्व. इसमें कोई भी हैवी इक्विपमेंट को क्या नहीं किया जाता? इन्वॉल्व नहीं किया जाता. कोरोजन रेजिस्टेंट सिस्टम. जो ये सिस्टम कैसा होता है? कोरोजन रेजिस्टेंट. नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड. और इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये बात हो गई स्टूडेंट्स एडवांटेज की. नेक्स्ट बात करें हम स्ट्रक्चरल स्टील की. ऑफन स्ट्रक्चरल और स्टील प्लेट्स आर एडेड टू कंक्रीट स्ट्रक्चर टू अलो देम टू कैरी एडिशनल लोडिंग. इन मोस्ट एप्लीकेशन द स्टील प्लेट्स आर bonded to the concrete by means of epoxy adhesives, and in addition to bonding it is a good practice to also bolt the steel plates to the concrete.
While this process is relatively labor and equipment intensive, there are many applications where the use of steel plates is the best alternative for structural strengthening. Typical applications for bonded steel strengthening are the ones where the use of advanced composite materials would be prohibitive due to their higher cost, and or where traffic or other type of wear would damage a FRP type strengthening system. ये बात की हमने स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल स्टील की। अब इसके हम एडवांटेज देखते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के। तो लो कॉस्ट एज लॉन्ग एज नो स्पेशल शेप फैब्रिकेशन रिक्वायर्ड, किसी भी स्पेशल शेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कॉस्ट भी इसकी क्या होती है, कम होती है। वेंडलिज्म एंड वियर रेजिस्टेंस, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, वियर रेजिस्टेंस और वेंडलिज्म। नेक्स्ट बात करें हम पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेंथनिंग की। तो फॉर स्ट्रेंथनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम्स और स्लैब्स, सिंपल एक्सटर्नली बॉन्डेड स्ट्रेंथनिंग systems may not be sufficient. In these situations, the strengthening system may need to be tensioned to provide an active strengthening system and be able to enhance the load carrying capacity of the concrete structure in conjunction with the existing built-in pre-stressing system. In most cases, the post-tensioning system is designed with the following external components: fixed anchorage system located towards each end of the beam slab, and post-tensioning cables that tension between the two anchors that then locked in a tensioned state. The tensioning cable can be regular, high tensile, multi-strand steel, rigid, carbon fiber rod or carbon fiber fabric. The post-tensioning cable can be bounded or unbounded along its entire length. The end anchorage system can be made of either concrete that is dovelled into the existing concrete or could be manufactured of structural steel that is bolted to the structure. एडवांटेज की बात करें स्टूडेंट्स तो increases load capacity of the structure to design specification, cost effective alternative to the only other option, remove and replace. Minimal construction time requires minimal or no disruption to traffic plant operation. स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की वीडियो में हमने बात की ये जो एक्सटर्नल बॉन्डेड प्लेट्स होती है इनका प्रोसेस क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनके बारे में। तो एक्सटर्नल बॉन्डेड प्लेट में पहले हमने सबसे पहले डिस्कस किया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग कि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग होती है ये क्या होती है, ठीक है, क्या तो इसका कार्य होता है और कैसे इसको हम यूज करते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा एडवांस कंपोजिट मटेरियल, जो कंपोजिट मटेरियल हम यूज करते हैं उसके बारे में। तो उसमें हमने देखा फाइबर रेनफोर्समेंट पॉलीमर, इसके अलावा ग्लास, करोब, FRP, जो भी हम इसमें यूज करते हैं सबके बारे में हमने डिस्कस किया, जिनमें से फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे लो वेट और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है हमको रिक्वायरमेंट होती है। सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो वहाँ पे एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड एक्सटर्नली बॉन्डेड रेनफोर्समेंट क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम इनके एडवांटेज के बारे में बात करें, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया। फिर स्टूडेंट्स हमने बात की स्ट्रक्चरल स्टील की,
स्ट्रक्चरल स्टील जो होती है, हम स्ट्रक्चर बनाने में जो स्टील का यूज करते हैं उसे स्ट्रक्चरल स्टील की कैटेगरी में रखा। अब स्ट्रक्चरल स्टील की कैटेगरी में रखा है तो इसके क्या क्या तो फ़ायदे होते हैं, बॉन्डिंग इससे कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, एडेसिव। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जो सेम पार्टिकल के मध्य जो बॉन्डिंग होती है, जैसे सीमेंट से सीमेंट के बीच में बॉन्डिंग है तो उसको हम कोहेसिव बॉन्डिंग कहते हैं, और सीमेंट का एग्रीगेट के साथ बॉन्डिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडेसिव। तो समान पार्टिकल के मध्य यदि कोई बॉन्ड है तो उसको क्या कहते हैं हम, कोहेसिव। और डिसिमिलर या असमान पार्टिकल के मध्य जो बंध लगता है उसको क्या कहते हैं, एडेसिव। तो स्ट्रक्चरल स्टील के साथ कैसे बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट्स, एडेसिव। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। फिर एडवांटेज क्या थे इसके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेंथनिंग। तो इसमें बार बार एक शब्द आया एंकरिंग। एंकर बार जो होती है वो क्या होती है, एंकर बार क्या होती है, अपन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं एंकर बार। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट में आपको इस पर आराम से इस पर एक्सप्लेनेशन इस पर किया जाएगा, एंकर बार क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेंथनिंग की। आरसीसी अपन रूफ डालते हैं, ठीक है, उसमें अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि जो रेनफोर्समेंट है इसकी जो कैपेसिटी होती है टेंशन लोड को रेजिस्ट करने की, वो रेनफोर्समेंट की ज़्यादा होती है, और कंक्रीट की जो कैपेसिटी होती है वो कंप्रेशन लोड को रेजिस्ट करने की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे दोनों प्रकार के लोड आते हैं, टेंशन लोड भी आता है, कंप्रेशन लोड भी आता है। ठीक है ना, तो उसको बैलेंस रखने के लिए, लोड है उसको इक्वली ट्रांसफ़र करने के लिए, और स्ट्रक्चर है उसको ड्यूरेबल रखने के लिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं उसमें, रेनफोर्समेंट। इसके एडवांटेज, हमने एडवांटेज की बात की। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।